Hello friends, I Amit Trivedi, an SS professor who teaches you history, political science and geography. So friends, I just want you all to see on the right hand side above the green box, the paragraph what you can see, second last line, starting from the third last line. Such a document is further scrutinized by a historian with the help of the relevant historical reference. Now what do you mean by scrutinized? Scrutinized means detail checking. Please write the meaning, detail checking. So friends, you can see the green box now. Okay, green box को बराबर से देखो and pencil ले लो चलो and put the numbers. Number 1 on writing of historical narratives के ऊपर वाला exactly ऊपर वाला examine relative. पहले हम नंबरिंग करते हैं फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ. Examining the relative references of the available historical information. Number 1, right hand side की तरफ जाना clockwise. Collecting historical information, highlighting the process that leads to the historical transition, carrying out a comparative analyzing. Number 2. Number 3, understanding the references regarding the time and space of the given historical events and also various conceptual frameworks used in historical research method. करता हूँ मैं एक्सप्लेनेशन करूँगा, पहले नंबर लिख लो. Number 4, formulating the relevant questions in view of the historical reference. Number 5, formulating the hypothesis. And last one, number 6, that is critical examining of various sources of history. लिख दिया 1 2 3 4 5 6. Okay. Now come to number 1 point. Historical research method. See on the center what it is written. Writing of historical narrative. हिस्टोरिकल नरेटिव्स लिखने का मेथड कैसा है, हाउ टू राइट द हिस्ट्री, मेथड क्या है उसका. सो नंबर 1, मैं जो कहूँगा प्लीज़ उसको सर्कल करना है. आप मैं जो वर्ड बोलूँगा 2 बार उसको आपको सर्कल करना है, ठीक है. तो ध्यान से सुनना और देखना प्लीज़. टेक्स्ट बुक में देखना है सबको या आपके पीडीएफ फाइल में देखना है बराबर से. अब पीडीएफ फाइल में सर्कल तो नहीं हो पाएगा बट एटलीस्ट यू राइट दैट वर्ड इन योर नोटबुक. Examining the relevant reference of the available historical information. दूसरी बार जो वर्ड बोलने जा रहा हूँ that is relevant. सर्कल कर दो relevant. अब फिर से पढ़ते हैं. Examining का मतलब होता है एग्जामिन करना यानी चेक करना. Relevant यानी कि रिलेटेड, उसको हमने हाईलाइट किया है, सर्कल किया है. तो जब भी हम एग्जामिन करते हैं तो जो भी रिलेटिव रेफरेंसेस है, कहाँ कहाँ से वो इंफॉर्मेशन आई है, अवेलेबल हुई है, अंडरलाइन कर दो अवेलेबल. रेफरेंस ऑफ द अवेलेबल हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन. ओके, अवेलेबल. तो जहाँ से अवेलेबल हुआ है वो इंफॉर्मेशन को आपको अंडरलाइन करना. सेकेंड पॉइंट, collecting historical information, highlighting the processes that leads to historical transition, carrying out comparative analysis. तो इसमें जो वर्ड मैं दूसरी बार बोलने जा रहा हूँ that is collecting. इसमें सर्कल करो collecting. सबसे पहले आप relevant information देखो कि क्या रिलेट कर रहा है. सेकेंड पॉइंट collecting, कलेक्ट करो वो कहाँ कहाँ से इंफॉर्मेशन कलेक्ट हुई है, अंडरलाइन कर दो. हाईलाइटिंग, कहाँ कहाँ से इंफॉर्मेशन कलेक्ट हुई है उसे हाईलाइट करो और उसको कैरी करो आगे कंपेयर करने के लिए. तो अंडरलाइन कर दो कैरिंग एंड कंपैरेटिव, कैरिंग आउट द कंपैरेटिव. तो कंपैरेटिव को भी अंडरलाइन कर दो. नाउ सी द थर्ड वन, अंडरस्टैंड द रेफरेंसेस रिगार्डिंग टाइम एंड स्पेस ऑफ द गिवन हिस्टोरिकल इवेंट्स एंड ऑल्सो various conceptual frameworks used in historical research method. Try to understand this point. First to circle the word understanding. What do you mean by understanding? बोलो, understanding क्या होता है? समझना. ओके, समझना the references regarding time and space of the given historical events. कितने समय पहले की ये बात की जा रही है. एंड ऑल्सो वेरियस कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क. चलो सर्कल कर दो कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क. फ्रेमवर्क का मतलब होता है अ काइंड ऑफ अ लिमिट्स विच इज़ यूज्ड इन हिस्टोरिकल रिसर्च मेथड. कि क्या
कॉन्सेप्ट से हमें समझना है हिस्ट्री। नंबर 4, फॉर्मुलेटिंग द रिलेवेंट क्वेश्चंस इन व्यू ऑफ द हिस्टोरिकल रेफरेंस। सर्कल करो वर्ड फॉर्मुलेटिंग। द मीनिंग ऑफ फॉर्मुलेटिंग इज प्रिपेयरिंग। फॉर्मुलेट यानी प्रिपेयर करना। फॉर्मुलेट रिलेवेंट क्वेश्चन। भाई जब तुम कोई चीज़ को समझना चाहते हो तो तुम्हें क्वेश्चंस डेफिनेटली तुम्हारे अंदर क्वेश्चन अराइज होंगे। देयर विल बी सेवरल क्वेश्चंस, व्हाई, व्हेन, वेयर, व्हेट, व्हाट, हु, whom, for whom. So there is n number of questions, and through that n number of questions, finding of that answer will ultimately bring that information in a acceptable form or non acceptable form. जैसे अभी हम लोग जो समझो एग्जाम्पल कोरोना वायरस के बारे में बात कर रहे हैं। आई शुड नॉट स्पीक, आई शुड नॉट गो विद द डेलिकेट टॉपिक राइट नाउ, बट स्टिल अगर हम कोरोना वायरस के बारे में बात कर रहे हैं, समझो आज से 40 साल बाद जब आप लोग अप्रॉक्सीमेटली लेट अस से 50 क्रॉस कर चुके होंगे। मैं आपका अप्रॉक्सीमेट एज आपका 13, 14, 15 के आसपास का देख रहा हूँ। 40 ईयर्स बैक बाद में तो आप लोग अप्रॉक्सीमेटली 55 के आसपास के हो जाओगे। तब आपके ग्रैंडसन, ग्रैंड डॉटर आपको पूछेंगे कि दादाजी, कि दादी जी, आपके ज़माने में कोरोना आया था, कैसा आया था, क्या हुआ था, आप लोग क्या कर रहे थे? देन विल से, बेटा उस वक्त हम लोग, मोदी जी हमारे प्राइम मिनिस्टर थे और हम लोग लॉकडाउन में बैठे हुए थे और बहुत संघर्ष वाला समय चल रहा था, काफ़ी दिक्कतें आई पर हम जीत गए। ऐसा कैसे जीत गए? हम घर में बंद बैठे थे, स्टे एट होम। तो आप लोग घर में बैठे थे तो जीत गए, घर में बैठ के भी जीत जाते हम लोग। तो वो समय ही ऐसा था बेटा। सो these are some of the interactions, what kind of a discussion you will do. Probably it's a kind of a humorous way to explain you, but definitely a kind of a formulating a method you have, right? जहाँ पे बहुत सारे सवाल होते हैं किसी चीज़ को समझने के लिए। नेक्स्ट नंबर 5 यू कैन सी फॉर्मुलेटिंग हाइपोथेसिस। सबसे पहले हाइपोथेसिस को सर्कल करो और उसका मीनिंग लिख दो। द मीनिंग ऑफ हाइपोथेसिस इज एजम्पशंस। देखो कभी भी कोई भी चीज़ हम डायरेक्ट नहीं आते। एजम्पशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जाम्पल अगर आप लोग को CID देख रहे होंगे तो उसमें देखा होगा आपने कि ACP प्रद्युमन जो है वो अपना दया को बोलते हैं, सोचो दया कुछ तो गड़बड़ है, राइट? अब जब मैं बोल रहा हूँ तो मेरा हाथ ऑटोमेटिक अपना ACP प्रद्युमन की तरह होने लगा है, शायद आपका भी होने लगेगा। यस, बट assumptions are very important. समझ में आ रहा है? Without assumption you cannot come to the nearest point of reality. And the last point is critically examining of various sources of history. तो यहाँ पे आप सर्कल करेंगे examining। तो critically यानी आपके पास सीधा सी when I say कि एग्जाम्पल मैं अगर कहता हूँ कि अभी दिन है, राइट? तो आप सीधा बोलोगे ओके सर दिन है, हो सकता है रात भी हो, राइट? तो आपके पास क्रिटिकल आंसर होना चाहिए। यू शुड नॉट डायरेक्टली ब्लाइंडली बिलीव। यस, हर बार हर चीज़ ट्रू और ट्रू ही नहीं होती है, फॉल्स भी हो सकती है। तो यू शुड नो दैट कि देयर आर ऑलवेज 2 आंसर्स टू एनीथिंग, आइदर इट इज नॉट, राइट? तो ये था आपका हिस्टोरिकल रिसर्च मेथड का राइटिंग ऑफ हिस्टोरिकल नैरेटिव 6 पॉइंट्स। तो आपने 6 पॉइंट में क्या क्या सीखा? सबसे पहले रिलेवेंट, यस, रिलेवेंट इंफॉर्मेशन। सेकंड में कलेक्टिंग, हाईलाइटिंग एंड कंपैरेटिव करना, कैरी करके कंपैरेटिव करना। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट में आपने सीखा अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क। किसी भी कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करो और उसके लिमिट्स को जानो। नेक्स्ट फॉर्मुलेट करो या फॉर्मुलेटिंग या अंडरस्टैंडिंग अबाउट द क्वेश्चन, क्या आप रिलेवेंट क्वेश्चन प्रोड्यूस करो। हिपोथेसिस यानी एजम्पशंस आपके पास होने चाहिए। यू कैनॉट जस्ट कम विथ वन आंसर, देयर आर मेनी एजम्पशंस। यस, हो सकता है, नहीं हो सकता है, क्या मालूम, मुझे पता नहीं, शायद उसे पता होगा,
दिस काइंड ऑफ हिपोथेसिस। एंड द लास्ट वन इज एग्जामिनिंग। कभी भी क्रिटिकली आपको कभी भी एग्जामिन करना बहुत ज़रूरी है। समझ में आ रहा है दोस्तों? यस, सो यू कैन टर्न द पेज नाउ।